hours to go before the results are announced, and amidst a heart-stopping and neck-and-neck battle in the political landscape of Chhattisgarh and Rajasthan, the Congress party is now preparing to make it a strategic move that could alter the course of the electoral race. As the assembly election results loom, the battle between the Congress and the BJP has reached fever pitch. Sources revealing a meticulous plan that has been crafted by the Congress to safeguard their Chhattisgarh MLAs from the clutches of horse trading. Meanwhile, the BJP has denied such allegations. The 5 states that went into polls, the people, of course, have cast their vote. On the 3rd of December, it will be decided as to who will emerge the winner. But with the exit polls right now predicting that it's going to be a photo finish in many of these states, the Congress wants to leave no stone unturned to ensure that they have a solid chance to form the government and nobody snatches it away. I'm standing outside the infamous Eagleton Resort. When I say infamous, it's not because of the property, but because of all the different things that have happened here in terms of MLAs from various states who've been brought here, including, of course, the MLAs from Karnataka itself, who've been housed here for multiple days, where we've seen governments either being, retained or, eventually collapsing. Right now, the information that we are gathering is that the Karnataka Congress, of course, will do everything that is necessary to protect any of the MLAs from any of these states if there is a situation where they do not have the numbers or they've just got the numbers by a very thin margin. And the DK brothers, of course, have been the ones or the go-to, leaders, especially here in Karnataka for the High Command to protect their MLAs in the past as well. And probably this time of a situation arises, they will continue to be. It remains to be seen whether all the action will shift to Bengaluru after the 3rd of December. Well, the Eagleton Resort will serve as an impregnable fortress, shielding the Congress MLAs from the relentless pressure and allure of political adversaries. The Congress and the BJP have held their cards close to their chest. While the Congress suspects horse trading, the BJP has dismissed such rumours and countered the Congress party, including now what is being also talked about, the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel, on the other hand, has exuded confidence of a clear majority, saying that he will not allow any such attempts of poaching or horse trading to happen. फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट कर रही है। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। चर्चा की जा रही है लगातार मिशन लोटस को लेकर, आप जानते ही हैं तमाम राज्यों का आप लगातार उसी कुछ भी करते थे, तो क्या माना जाए कि कुछ ऐसा यहाँ भी किसी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। बाड़ाबंदी करना ये परंपरागत रूप से कांग्रेस की इन दिनों में आदत बन गई है। जब से अंतर्द्वंद में फंसी सरकार ने 34 दिन राजस्थान में 5 सितारा होटल में बाड़ाबंदी की, अशोक जी गहलोत उसके परंपरागत रूप से विशेषज्ञ हो गए। अब जब उनकी कुर्सी टूट रही है, सरकार जा रही है, तब इस प्रकार की नौटंकी वो करेंगे, परंतु बाड़ाबंदी में लेकर किसको जाएंगे? जब उनके विधायक ही 50 से नीचे जीतेंगे तो बाड़ाबंदी किसकी करेगी? उनको बाड़ाबंदी करने की नौबत नहीं आएगी। Now, on the other hand, talking about Chhattisgarh, Deepak Baij, who is the Congress president there of the state unit, spoke exclusively to Times Now, dismissing any last resort preparations being done by the Congress, the same that is also being seconded by Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar. ಚುನಾವಣಾ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. TRS ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ. तो क्या हो गया? राजनीति है, व्हाट इज द रिजॉर्ट? तो गुवाहाटी और सूरत में क्या हो गया था महाराष्ट्र के बारे में? वो कौन सा पॉलिटिक्स था? शुरुआत किसने की है? तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो करना चाहिए, अपने विधायकों को साथ रखना चाहिए, नहीं तो वापस
ये तुम्हारा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स घुस जाएगा कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर, बुरखे पहनकर। तो इसलिए सबको एक साथ रखना जरूरी है। मकरंद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मकरंद, ऑन ग्राउंड कोई मूवमेंट, कोई तैयारियों की ऐसी कोई खबर आ रही है कि आखिरकार जो एमएलएज हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर बताई जा रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश या राजस्थान, तीनों जगह पर कांग्रेस बिल्कुल सतर्क है। और मध्य प्रदेश में भी हमने जब कांग्रेस से बात की तो उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन लोटस के भुक्तभोगी हैं, तो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और पूरी तैयारी कर रखी है। बीजेपी के हर किसी भी बात का जवाब देने के लिए कांग्रेस बिल्कुल तैयार है। तो अभी फिलहाल एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि चुनाव की जो मतगणना होगी उसमें एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई जाए। तो अभी मध्य प्रदेश में तो यही सिनेरियो, छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं जीत के लिए और बीजेपी अपने दावे कर रही है। एग्जिट पोल्स में भी कांग्रेस को हल्की बढ़त नजर आ रही है और इसी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस कॉन्फिडेंट तो है, लेकिन उसके बावजूद बाड़ाबंदी की जा रही है। हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा है, इसलिए कर्नाटक में रिसोर्ट बुकिंग की भी जानकारी आ रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो चार्टर्ड प्लेन से तमाम विधायकों को ले जाया जाएगा। और कहीं कहीं सैबोटेज की भी शिकायतें कांग्रेस की ओर से की गई हैं, कांग्रेस उम्मीदवारों की ओर से। तो जाहिर है कि किसी भी तरह का शक नहीं रखना चाहते और जाहिर है कि अगर 2-4-5 सीटों का डिफरेंस आया तो निर्दलीय और बागी ये भी एक बड़ा फैक्टर होंगे किसी भी सरकार को बनाने या ना बनाने में। तो अब ऐसे में अपने अपने विधायकों को स्ट्रांग रखना, सेफ रखना जरूरी है और मैन टू मैन मार्किंग कांग्रेस की तरफ से की गई है। छत्तीसगढ़ में एक एक विधायक पर, एक एक उम्मीदवार पर 3-3, 4-4 पदाधिकारियों की नजरें हैं और किसी भी तरह से कोई टूट ना हो और सरकार बनाने में कोई दिक्कत पेश ना आए, इसलिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पूरा जोर लगा रही है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की तैयारी है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर भले ही हो, लेकिन दोनों राजनीतिक दलों को उम्मीद है कि स्पष्ट बहुमत की ही सरकार आएगी और ऐसे में यहां पर इस तरह की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर तमाम विधायकों पर नजर रखी जा रही है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने मध्य प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं से, कमलनाथ से, दिग्विजय सिंह से, रणदीप सुरजेवाला से बातचीत भी की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है और जो भी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। जी धन्यवाद आपका मकरंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ क्यों ना हो, कांटे की टक्कर है। अब बताया जाएगा कल जब जैसी आंकड़े सामने आएंगे, रिजल्ट सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिरकार एमएलएस के साथ क्या किया जाएगा। धन्यवाद आपका मकरंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट